السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعما وخسا، فقال: يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مراد كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا عبد بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أني لكم رحمة سأبلها ببلادها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا، روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا ہے۔ بادہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن پر اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو اکمل و مکمل فرمایا، جن کی ذات پر اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک دستور عطا کر دیا۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان آپ کے سامنے انتظامیہ کی طرف سے منتخب ہوا ہے وہ عنوان ہے توحید کے فضائل و برکات۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں توحید کا چراغ جلائے رکھے، اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسی توحید کی نگر پر، اسی توحید کی ڈگر پہ قائم رکھے، اور ہماری وفات ہو تو ہمارے دلوں میں توحید کا پودا بالکل ہرا بھرا ہو۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اسی توحید پہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا نچوڑ، ہماری زندگی کا خلاصہ یہی توحید ہے۔ یہ توحید اگر نہ رہے، یہ توحید اگر نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا کرتا۔ ہماری پیدائش اور تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ کی یکتائیت کا مظاہرہ کرے، اللہ کی فردانیت کا اعلان کرے، ببانگ دہل اعلان کرے۔ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ توحید اللہ رب العالمین نے اس توحید کا مطالبہ جس طرح ہم سے کیا ہے ایسے ہی جناتوں سے کیا ہے، اور یہی مطالبہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اللہ کی جو بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے صرف 3 مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک حضرت انسان ہے، دوسری مخلوق جنات ہیں، اور تیسری مخلوق فرشتے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے توحید عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ اے لوگوں، اے مومنو، تم اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ یہ توحید سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ رب العالمین کے یہاں سزا سے دور رکھنے والی شیء ہے میرے بھائی۔ اور اللہ فرماتا اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود توحید پرست بنو اور اپنی اولاد کو بھی توحید کی طرف بلا کر کے اپنے دامن کو، اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دلاؤ، اور اپنی اولاد کی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دلاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ورنہ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کے ہاں توحید نام کی اگر کوئی چیز نہ ہوگی تو آپ اللہ رب العالمین کے ہاں ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں رسوا ہو جاؤ گے۔ جس طرح سے آج مشرکوں کی حالت ہے، جس طرح سے آج اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی حالت ہے، یہ تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے کتب ہیں، ہمارے بڑے بڑے ابدال ہیں، ہمارے بڑے بڑے پیرانے پیر ہیں جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، ہماری مانگ کو پوری کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم سے حکومت کا بلڈوزر چلتا ہے تو ہڈیاں
भी नजर नहीं आती है। और ये टूटना और हड्डियों का नजर न आना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ही वो जात है जो खुद माख्तार है, मदद करने वाली जात अगर कोई है रब तबारक व तआला की जात है। और मखलूकात में से किसी को इतनी पावर और ताकत और पावर रब तबारक व तआला ने नहीं दिया है कि वो दुनिया को का संचालक बनकर दुनिया को चला सके। जो अपनी कब्र की हिफाजत ना कर पाए, भला वो हमारी और आपकी क्या हिफाजत कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर इस तौहीद पे तुम अमल नहीं करोगे, अल्लाह ने जहन्नम की धमकी दी है कि अल्लाह तुमको ऐसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा जिसके इधर इंसान और गंधक के पत्थर होंगे, जिसकी निगहबानी के लिए ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यर किए हैं जिन पर आपके रोने और गाने का जर्रा बराबर असर नहीं पड़ेगा। वो फरिश्ते उतना ही करते हैं जितना अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करने का हुक्म दिया है। वो किसी की आहो बका से मुतासिर होने वाले नहीं है। ये फरिश्ते जिनकी खमीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिनकी फितरत में अल्लाह ने इताअत डाल दी है, और ये इताअत इबादत की एक अजीम किस्म है जिसका मुतालबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से किया है। जिस तरह हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने सजदे में गिर करके अपने रब को याद करते हैं, रुकू में जाकर रब को याद करते हैं, ऐसे फरिश्ते अपनी जबीन को आसमान की खलाओं में खम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करते हैं। बतौर दलील तिरमिज़ी की रिवायत कि नबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मअु मा ला तस्मऊन अफ़तति समाअहु क़ला अमतइता मा फ़ीहा मौज़ु अर्ज़ अज़ाबिया इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहु साजिदन लिल्लाह वल्लाहि लौ तअलमून मा अलम लबकैतुम कसीरा व लज़हिदतुम क़लीला व मा तलज़्ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुर्शी व लखरजतुम इला सूदाति तजारुहा इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब ज़ुहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहहहु अल-अलबानी रहमहुल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देख पा रहे। सहाबा को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मेरे सहाबा, मैं कुछ ऐसी चीजें देख लेता हूं जिसको तुम नहीं देख सकते। मैं आसमान को देख रहा हूं, ये आसमान हिल रहा है, उससे चरचराने की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वजह यह है कि आसमान के खलाओं में 4 इंच के बराबर भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी जहां पे कोई फरिश्ता अपनी जबीन और पेशानी को देख करके अपने अल्लाह की बंदगी और अपने अल्लाह को राजी न कर रहा हो। 4 इंच भी खाली जगह आपको आसमान की खलाओं में नहीं मिलेगी जहां पे कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत न कर रहा हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तो दिन रात बैठ करके रोओगे और तुम हंसना भूल जाओगे, तुम हंसना भूल जाओगे। अपने अकारीब, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को छोड़कर तुम जंगलों, बयाबान और सहराओं के अंदर चले जाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करने के लिए। ये फरिश्ते जिनकी फितरत में रब ने इताअत रखी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस कदर करते हैं, इतने इन्हिमात के साथ करते हैं। हमसे तो अल्लाह ने इबादत का मुतालबा भी किया है, इबादत हमारे ऊपर वाजिब भी करार दिया है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम आज मस्जिदें अजान हो रही है, मस्जिदों की सफाई खाली नजर आती है, मस्जिदें वीरान नजर आती है। उनको तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत और जहन्नम नहीं बनाई है, जन्नत और जहन्नम तुम्हारे लिए रब ने तैयार किया है। रब ने मुतालबा इबादत का तुमसे किया है, तौहीद का मुतालबा किया है, लेकिन हमारी और आपकी हालत यह है कि मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे, मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह नारे बुलंद करते रहे मस्जिद पे, और हम खाबो खरगोश हम अपने घरों में बैठ करके, कोई टीवी के सामने है, कोई मोबाइल पे बिजी है, कोई सीरियल देखता है, कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है। न जाने किस तरह के मुगल्लज़ात में आज उम्मत मुसलमा जो है मुलव्विस है। फरिश्ते इबादत पे इबादत करते हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम नहीं बनाई है, बल्कि हमारे लिए बनाई है। जब फरिश्ते इस कदर अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी मेरे भाइयों किस तरह से करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को इसी तौहीद के लिए पैदा किया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के भेजने का मकसद बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है,
वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर नबी भेजा है और सारे लोगों को हमने यही हुक्म दिया है अन इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में शरीक नहीं करना, उसके साथ अल्लाह के अस्मा में किसी को पार्टनर नहीं बनाना, अल्लाह की तौहीद उलूहियत में किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह की रुबूबियत में किसी को शरीक नहीं ठहराना। लेकिन बेगैरती का आलम यह है, आज नमाजें मस्जिदों में हो रही है, नमाजें आस्थानों पे हो रही है, आज यहाँ भी सजदे हो रहे हैं और वहां भी सजदे हो रहे हैं, अल्लाह के लिए नजर नियाज माना जा रहा है, गैरों के लिए भी नजर माने जा रहे हैं। और याद रखो जिस तरह लोग काबा पे चादर चढ़ाया जाता है, कुछ लोग किसी और शय को काबा बना करके और सेकंड और हर मिनट पे उस पे चादरें चढ़ाते हुए नजर आते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया है कि हम एक अल्लाह के सामने झुके। ये सर अल्लाह ने एक बनाया है और इसको बनाने वाली जात तन्हा है, अकेला है। अल्लाह ने सर एक बनाया ताकि ये सर एक अल्लाह के सामने झुके, किसी गैरुल्लाह के सामने ना झुके, चाहे वो कितना बड़ा अमीर हो, चाहे कितना बड़ा पीर हो, कितना बड़ा फकीर हो, यहाँ तक कि अंबिया के कब्रों के सामने, उनके आस्थानों के सामने में झुकना शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया है। जब नबियों और रसूलों के आस्थाने पे अपने माथे को टेकना जायज कि नहीं है, हराम है, तो भला बताओ जिनका दर्जा नबियों से कमतर है, रसूलों से कमतर है जिनका दर्जा, उनके सामने झुकना और अपने माथे को उनकी कब्रों पे टेकना किस तरह से जायज हो सकता है मेरे भाइयों। अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। जब नबियों के सामने झुकना जायज नहीं है तो बाद में आने वाले वलियों के सामने झुकना जायज कैसे हो जाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों के भेजे जाने का मकसद बयान किया, यही तौहीद बयान किया। हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए भेजा ताकि तौहीद का डंका बजाएं, तौहीद का अलम लेकर के अपनी जुर्रियत के अंदर और उसके ऐलान करे, बेमांगे दुहल ऐलान करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अतायत का, उसकी फरदानियत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाए ये कहते हुए कि अल्लाह की तनो तन्हा इबादत के लायक है, वही रोटी देने वाला, वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, वही सब कुछ है मेरे भाइयों, अल्लाह ही है। आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, एक साहब तकरीर में जोश में आकर के कहते हैं कि कछौसा शरीफ का जो पानी है वो जमजम के पानी से भी अफजल है। नऊजुबिल्लाह। आदमी की अकलों पर जब पर्दा पड़ जाता है, जब आदमी गुनों का शिकार हो जाता है तो उसकी निगाहें अंधे हो जाती है, बसीरत बसारत सब जो है मायूस हो जाती है, उसका दिमाग और उसकी अक्ल जो है काम करना छोड़ देती है मेरे भाइयों। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने, अल्लाह के रसूल ने कहा इय्याकुम वल गुलुवा, ऐ लोगों गुलू से बचो, किसी को इतना ना बढ़ाओ कि औदे सुरैया पे पहुंचा दो, किसी को इतना ना गिराओ कि उसको तहतुस सरा पे पहुंचा दो। एतदाल, इस्लाम एतदाल की तालीम देता है, मियाना रवि की तालीम देता है। न इफरात है इसके अंदर, न तफरीत है, न गुलू है, न इसके अंदर तसाहुली है। जितना जिनका मकाम है उसी मकाम पे रखो, इतना ना किसी को बढ़ा दो कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर गया है मदीने में मुस्तफा बनकर। इस तरह की जो मुगल्लजात हमारी जुबानों से निकलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की मुगल्लजात से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में दावत का प्रचार और प्रसार करते रहे, लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते रहे। 950 बरस अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत कम और थोड़े लोगों ने अल्लाह की तौहीद को कबूल किया और अक्सरियत जो है शिर्क के दलदल में फंसी रही। हजरत नूह को बद्दुआ करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, एक दिन का मामला नहीं, 2 दिन का मामला नहीं, 1 साल का मामला नहीं, 2 साल का नहीं, 950 बरस अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, रात में बुलाते, दिन में बुलाते, चुपके चुपके बुलाते, अलग ऐलान बुलाते, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह की तौहीद को एक्सेप्ट नहीं किया, अल्लाह की तौहीद को कबूल नहीं किया। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दिया, कहा अल्लाह मुशरिकों का एक भी भविष्य जमीन पे नहीं छोड़ना,
अगर ये मुशरिक बाकी रहेंगे तो ये फासिक और फाजिर को जन्म देंगे, इनकी नस्लें भी मुशरिक निकलेंगी, इनकी नस्लें भी जो है अंबिया की खिलाफ वर्जी करते हुए, उनकी तालीम के खिलाफ करते हुए इनकी नस्लें आगे जाएंगी। इसलिए अल्लाह एक भी घर इन काफिरों का, इन मुशरिकों का इस धरती पे बाकी नहीं रखना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है, अल्लाह अजाब भेजता है, हजरत नूह का बेटा है, उसको दावत देते हैं अल्लाह की बात मान लो, उसकी तौहीद को मान लो, लेकिन वो गुरूर घमंड में आकर के, एटीट्यूड में आकर के उसने कहा, अरे मेरे अब्बू जान, मैं तो पहाड़ पे चढ़ के अपने आप को बचा लूंगा, मुझे किसी अजाब से डर नहीं लगता है। अल्लाह का अजाब आया, हजरत नूह के सामने उनका बेटा डूब रहा है, पानी में गरकाब हो रहा है, और नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जाग जाती है और कहते हैं, अल्लाह मेरा बेटा भी मेरे अहल में से है, अल्लाह उसको नजात दे दे, उसको बचा ले। रब से आवाज देता है कि नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, सुन तेरा बेटा तौहीद को नहीं कबूल किया, तौहीद को ना कबूल करने की वजह से उसका रिश्ता और नाता उससे कट गया है, तेरे खानदान का नहीं है, तेरे अहलो अयाल में से नहीं है। अल्लाह का अजाब आया और नूह की निगाहों के सामने नूह का बेटा घरकाम हो जाता है, पानी में डूब के मर जाता है, अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाता है। मेरे भाइयों, बयान करने का यह मकसद है, जब एक नबी उसके सामने उसका बेटा डूब जाता है, जब नबी हजरत नूह अपने डूबते हुए बेटे को अब नहीं बचा सके, तो भला बताओ आज ये जो है आपके जो न जाने कितने मनोमन मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, ये आपको अल्लाह के अजाब से नजात दिलवाएंगे? वो धोबी के किस्से कि उनके नकीर सवाल करने जब आते हैं, नकीरेन जब सवाल करने आते हैं तो मुर्दा जवाब देता है कि मैं फला का धोबी हूं, फला का कपड़ा धुलता था, और उसी पे उसको क्या मिल जाती है? नजात मिल जाती है। इस तरह से जो हकवात और हसीयात जो आज बके जाते हैं, क्या ये अल्लाह के शान में और फरिश्तों की शान में मेरे भाइयों गुस्ताखी नहीं है? और मैं आपको बताऊं, नूह का बेटा है, निगाहों के सामने डूबता है, नूह जब मुतालबा रब से करते हैं अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, रब आवाज देता है तेरा बेटा नहीं है। अगर वो तेरा हकीकी मानों में होता, अगर वो तौहीद कबूल कर लेता तो तेरा होता, तौहीद उसने कबूल नहीं किया इसलिए वो तेरा नहीं है। इससे इशारा मिला जब नबी अपने बेटे को, डूबते हुए बेटे को ना बचा सका, तो हम और आप इस खेत के मूली हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद होगी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा नज़लत हाज़िही आया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशन फज्तमऊ फहस्सा व अम्मा फ़क़ाल या बनी काब इब्न लुअय अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ, या बनी मुर्रा बिन काब अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मुनाफ अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी हाशिम अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अंकिबू अनफुसकुम मिनन नार, या फातिमतु अंकिबी नफ्सकी मिनन नार फइन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअ गैर अन्नी लकुम रहिमन सअबुल्लुहा बिजलालिहा अखरजुल मुस्लिम फी किताबिल ईमान। ईमान के चैप्टर में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसका तज़किरा किया है, और रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कुरान करीम की आयत करीमा व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन नाज़िल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश खानदान के, कुरैश के जितने कबीले थे तमाम लोगों को इकट्ठा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर के कहा या बनी काब इब्न लुअय, ऐ बनी काब की औलादो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या बनी मुर्रा, ऐ मुर्रा की औलादो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। या बनी अब्द शम्स, अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द मनाफ की औलाद को, बनी अब्द शम्स की औलाद को, और इसी तरह से अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम की औलाद को मुखातब करते हैं, कहते हैं ऐ लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। और आखिर में अपने लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में बयान
फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, कल कयामत के दिन मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं हूँ। रिश्तेदारी जो है उसको जरूर निभाऊंगा, लेकिन आखिरत के अंदर ना मैं तुम्हें जन्नत दिला सकता हूँ, ना मैं तुम्हें जहन्नम से निकलवा सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत शामिल हो जाए और मुझे तुम्हारे लिए शफाअत का हक मिल जाए तो हम तुम्हें नजात दे सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुमने तौहीद कबूल नहीं किया, अल्लाह की यक्तायत फरदानियत का इकरार नहीं किया, तो तुम्हारी रिश्तेदारी कितनी ही कवी क्यों ना हो, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हें जर्रा बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम है, और मुशरिकों का कल कयामत के दिन कोई मददगार साबित नहीं होगा। मेरे भाइयों, नाम लेकर के अल्लाह के रसूल कह रहे, मेरी बेटी फातिमा, जो मांगना है मांग ले, दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर मैं तेरे कुछ काम आने वाला नहीं। जिससे इशारा मिलता है मेरे भाइयों कि अगर हम अमल के मैदान में पीछे रहे, हमने तौहीद को कबूल नहीं किया, अल्लाह को उसकी इबादत में एक नहीं जाना, उसकी रुबूबियत में एक नहीं जाना, उसके अस्मा सिफात में एक नहीं जाना, उसके अस्मा सिफात को अगर हमने तस्लीम ना किया, तो याद रखो कल कयामत के दिन हमारी नजात पे सवालिया निशान उठेगा। आज लोग कहते हैं बख्शुआ लेंगे फला, जब आदमी मर करके मनोमन मिट्टी के नीचे जाएगा तब उसको सारी चीजें याद आएंगी जो कि हमने दुनिया के अंदर क्या किया था, क्या धारा था। कितनी भी आप नेकियां कर लो, लेकिन आपका अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, तौहीद दुरुस्त नहीं है, तो सारे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन लाएगा और बर्बाद कर देगा। लाइन अशरफता, ऐ नबी, अगर आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, अल्लाह कहता तो तुम्हारे आमाल भी जाए और बर्बाद कर दिए जाएंगे। दिन रात शिर्क और बिदअत के ढोल पीटने वाले, तुम्हारे आमाल का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या होगा? रेत का जर्रा बना करके आवारा हवाओं के रब हवाले कर देगा। दुनिया के अंदर जितना डीने मारना है, जितना चीखो पुकार करना है, चीखो पुकार कर लो, डीने मार लो। खुदा की कसम, जब मलकल मौत, जब जान निकालने वाले फरिश्ते तुम्हारे सिरहाने खड़े होंगे, तब तुमको पूरी दुनिया नजर आएगी और आपका मकान जन्नत के अंदर है या जहन्नम के अंदर है। जब देखोगे तब तुम्हारी हवा टाइट होगी, तब तुमको एहसास होगा कि हमने पूरी जिंदगी क्या किया। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे जाने का यही मकसद था कि तौहीद का प्रचार करे, तौहीद को आम करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कोई काम बता दीजिए जिस काम को करके मैं अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवार लूं। जैसा कि शेखैन की रिवायत है, सहीहैन की रिवायत है कि अन अब्दुल्लाह अन सुफियान इब्न अब्दुल्लाह क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह हद्दिसनी बिअमलिन आतसिमु बिही फ़क़ाल क़ुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। हज़रत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, कोई काम बता दो जिस काम को करके मैं अपनी दुनिया को भी और आखिरत को संवार सकूं। अल्लाह के रसूल ने कुल रब्बी अल्लाह, कहो कि मेरा रब अल्लाह है और उसी पे डटे रहो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्या रब्बी अल्लाह के नारे लगाने से हमें जन्नत मिल जाएगी? हरगिज नहीं मिलेगी। सूफियों के आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे कोई सूफी घुंघरू पहन के डांस करता है, कोई मर्द है दाढ़ी रखा हुआ है और औरतों के लिबास पहन करके घूंघट डाल करके अपने चेहरे पे और लोगों से पैसे वसूलते हुए नजर आता है। वो नाचता है, वो थिरकता है, वो घुंघरू पहनता है, वो सिंदूर लगाता है, एक भी नमाज नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, न शरीयत का पाबंद, यहाँ तक कि खड़े खड़े मोटता नजर आता है और वो सबसे बड़ा वली बना हुआ है, सबसे बड़ा सूफी बना हुआ है। खुदा की कसम, ये सूफी नहीं है, जो सूफियों के भेष में शैतान है। ऐसे शैतानों से हमें चौकन्ना रहना चाहिए, ऐसे शैतानों से हमें चौकन्ना रखना चाहिए। रब्बी रब्बी का नारा लगाते, ला इलाहा इल्लल्लाह,
न जाने कि एक सूफी के बारे में भी कल पढ़ रहा था, वो 10 साल तक ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा कहता रहा और 10 साल ला इलाहा कहते कहते उसकी वफात हो गई। लोगों ने कहा ये तो बड़ा नेक हुआ, अच्छा उसने खात्मा हुआ, इसका खात्मा ईमान पे हुआ। मैंने कमेंट चढ़ाया उस पे, अरे सुनो उसका ईमान, इसका उसका जो खात्मा और उसकी जो वफात हुई है ये हालते ईमान में नहीं बल्कि हालते कुफ्र में हुई है। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी जिंदगी कहता रहे और मोहब्बत रसूलुल्लाह ना कहे, खुदा की कसम उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं है। अगर ला इलाहा अल्लाहु कहते मर गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार उसने नहीं किया, खुदा की कसम वो जहन्नम के अंदर जाएगा, क्योंकि उसने अपने कलमे को कंप्लीट नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत के साथ रसूल मोहम्मद की रिसालत और नबूवत का जब तक वो इकरार ही नहीं बनेगा, उसके जुबान पे वो तराने नहीं निकलेंगे, जब तक वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। मेरे भाई, रब्बी अल्लाह का मतलब क्या है? जब हम रब्बी अल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि हम अल्लाह को हकीकी रब जाने, मारने वाला, जिलाने वाला, रोजी देने वाला, दोस्त आजम, दस्तगीर, सब अल्लाह के ताल्लुक से यही अकीदा रखे कि मारने वाला भी अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह, रोटी देने वाला अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, दोस्त आजम अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये सिफात अगर हम किसी मखलूक के साथ खास कर देंगे तो यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ क्या शरीक करना है। और जो रब्बी अल्लाह कहे और अल्लाह के साथ शरीक करे, यहां भी सर टेके और वहां भी जाकर के सर टेके, वो अपने रब्बी अल्लाह में सच्चा नहीं हो सकता है मेरे भाई। और अगर किसी का ये अकीदा रब्बी अल्लाह का हो गया, सारी चीजें अल्लाह के लिए उसने खास कर दिया, अस्मा सिफात जो अल्लाह के लिए है उसको अल्लाह के लिए माने, वही हकीकी मानों में अल्लाह को रब मानने वाला है। और ऐसे ही लोगों को जब कब्र में ऐसे लोगों से पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल कब्र में क्या होगा? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर आपका अकीदा अल्लाह के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं होगा, खुदा की कसम आप फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज बेशुमार मुसलमान इस धरती पे घूम रहे हैं, आप उनसे जाकर के पूछो सिर्फ अल्लाह के बारे में यही सवाल कर लो, ऐन अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां है, तो वो जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। अल्लाह के ताल्लुक से हर जगह का अकीदा रखना ये कुफरिया अकीदा है। अल्लाह ने कुरान में अपनी जिहद की तरफ इशारा किया, कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है। हर जगह मानने वालों का अकीदा गुमराहों का अकीदा है, अल्लाह हर जगह नहीं है। रब अपनी जात के एतबार से अर्श पे मुस्तवी है और अल्लाह का इल्म सारी चीजों को अपने घेरे और दायरे में रखा हुआ है। अल्लाह के इल्म में, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श पे है और सातवें आसमान के ऊपर अर्श है, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? मुस्तवी है मेरे भाइयों। आज अल्लाह के ताल्लुक से लोग ये ढंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह किसी को नहीं मालूम अल्लाह क्या है, न उसका कोई जिस्म है, न उसका कोई हाथ है, न उसका कोई पैर है, न उसका कोई चेहरा है, न कोई खला है, न कोई मला है, न कोई मकान है, न कोई जमान है, न कोई कैफियत है, न कोई कमियत है, न कोई जमान है, न कोई मकान है। इस तरह की बातों में लाते लोगों को उलझा करके और अल्लाह के ताल्लुक से जो कुरान ने अकीदा दिया है उस अकीदे से लोगों को फेरना चाहते हैं, जबकि कुरान ने साफ बयान फरमा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, अल्लाह के पास हाथ नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दो हाथों की तरफ इशारा किया, वकालतुल यहूदी यदुल्लाहि मगलूला, जब यहूदियों ने, जालिमों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, गुल्लत अयदीहिम लुइनु बिमा कालू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कौल का तज़किरा कुरान में किया कि यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। उसका जवाब देते हुए अल्लाह ने कहा बल यदाहु मबसूततान, अरे जालिमों, अल्लाह के पास हाथ भी है और अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं, जैसा चाहता है अल्लाह खर्च करता है। मेरे भाइयों, यहूदियों का यह अकीदा था अल्लाह के पास हाथ है, एक एक हाथ नहीं, दो दो हाथ है। और आज मुसलमान कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को हथवे नहीं है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाथ ही नहीं है, अल्लाह को दस्त ही नहीं है। अरे तुम हाथ की बात करते हो, कुरान करीम ने यह भी बता दिया मेरे अल्लाह का दाहिना हाथ भी है, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया सिर्फ दाहिना नहीं है, बायां हाथ भी है। सिर्फ दाहिना नहीं, बायां हाथ भी है। जैसा कि मुस्लिम ही की रिवायत है कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल समावाति सुम्मा याख़ुदुहुन्ना बियदिहिल उल्मना सुम्मा यक़ूल अनल मलिक अय्नल जब्बारून व अय्नल मुतकब्बिरून सुम्मा यतवी अरदीना बिशिमालिही सुम्मा यक़ूल अनल मलिक अय्नल जब्बारून व अय्नल मुतकब्बिरून अखरजो मुस्लिमुन फी किताब सिफतिल क़ियामा वल जन्नति वन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन आसमान को लपेट करके अपने दाहिने हाथ में ले लेगा, जमीन को लपेट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बाएं हाथ में ले लेगा, सारे आसमान को लपेट के रब दाहिने हाथ में ले लेगा, और सारी जमीनों को अल्लाह गेंद की तरह बना करके सारी जमीन को अपने बाएं हाथ में रख लेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अनल मलिकु, मैं बादशाह हूं, अय्नल जब्बारून व अय्नल मुतकब्बिरून, अय्नल जब्बारून व अय्नल मुतकब्बिरून। कहां है ये जालिम जालिम जो दुनिया के अंदर अपने आप को हुक्मरान कहते थे, बादशाह कहते थे, जिनकी बादशाहत का सिक्का चलता था? कहां है ये जालिम और कफ्फार किस्म के तकब्बुर का मुजाहिरा करने वाले, अकल का मुजाहिरा करने वाले? रब दाहिने हाथ में आसमानों को ले लेगा, बाएं हाथ में जमीन को लेकर के अल्लाह ऐलान करेगा अनल मलिको, मेरी बादशाहत है, अय्नल जब्बारूना व अय्नल मुतकब्बिरूना। कहां है मुतकब्बिरीन, कहां है जब्बारीन जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े दावे करने वाले थे? ये हदीस बतला रही है। अल्लाह कुरान ने इशारा जो किया कि अल्लाह के पास हाथ है, हदीस रसूल ने इशारा कर दिया सिर्फ हाथ ही नहीं, दाहिना हाथ भी है, बायां हाथ भी है। दाहिना हाथ भी है, बायां हाथ भी है। लेकिन याद रखो, क्या हमारे हाथ की तरह अल्लाह का हाथ है? नहीं, हमारे हाथ की तरह अल्लाह का हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह का हाथ अल्लाह के शान के मुताबिक, जिस तरह उसकी शान है उसके शान के मुताबिक अल्लाह के पास हाथ है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बतलाता चलूं मेरे भाइयों, जिस तरह हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ के बनिस्बत ताकतवर होता है, दाहिना हाथ मजबूत होता है, बायां हाथ थोड़ा सा कमजोर होता है। दाहिने से आप ज्यादा काम कर लेंगे, बाएं हाथ से उतना काम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखो, ताकत और कुव्वत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ दोनों जमीन है, यानी दोनों पावरफुल है, किसी में कम किसी में ज्यादा हमारी तरह नहीं है। अल्लाह के दोनों हाथ यमीन है, यानी ताकत और कुव्वत और फजल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ बराबर है। मेरे भाइयों, ये अकीदा हम अपने बच्चों को बताएं, कि अल्लाह ने अपने चेहरे का भी तज़किरा किया है, अल्लाह ने अपने कदम का भी तज़किरा किया है, सिर्फ उंगली का तज़किरा किया, उंगलियों के पैर का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तज़किरा किया, और अल्लाह ने अपने कमर की तरफ भी, जैसा कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कमर है, उसी कमर को पकड़ करके सिला रहमी रिश्तेदारी लगती हुई। ये सब कुछ अल्लाह है और उसके रसूल ने अल्लाह के लिए बयान किया। लेकिन आज का मुसलमान कहता ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। खुदा की कसम, ये मुसलमानों वाला अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा नहीं, ये कुरान का अकीदा, हदीस का अकीदा, सहाबा का अकीदा, ये अइम्मा का अकीदा नहीं है, ये गुमराहों का अकीदा है। लिहाजा हम अपने बच्चों को बताएं अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, अल्लाह के पास हाथ भी है, अल्लाह के पास चेहरा भी है, अल्लाह के पास कदम भी है, अल्लाह के पास नफस भी है, अल्लाह के कमर का भी तज़किरा है। ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को बताएं और उनके ज़हनो दिमाग के अंदर डालें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निराकार नहीं है, बल्कि जिन सिफात पर रब ने तज़किरा किया है कुरान और हदीस के अंदर, उसको माने। लेकिन लैसा कमिस्लिही शै, क्या हमारी तरह अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का कदम, अल्लाह के हाथ है? उसका जवाब कुरान ने दिया, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। अल्लाह के पास हाथ है, चेहरा है, कदम है, जैसे उसकी शान के मुताबिक है वैसे है। हम उसकी कैफियत और मिसाल बयान नहीं करेंगे, लेकिन जितना कुरान और हदीस के अंदर वारिद है उसी को मानेंगे, और यही तौहीद है। और जो इसको ना माने वही तौहीद से क्या है, इनहराफ है। मेरे भाइयों,
हम अपने बच्चों को ये बताएं सहाबे किराम के बारे में। आज तो हम सबसे पहले अरबी पढ़ाते हैं। कहां जा रहा बेटा? अरबी पढ़ने जा रहा है। सहाबे किराम के बारे में आता है कि सबसे पहले वो अपने बच्चे को कुरान सिखाते थे। कुरान नहीं सिखाते थे, सबसे पहले अपने बच्चों का अकीदा मुकम्मल करते थे, सही अकीदे की तालीम देते थे। जब वो सही अकीदा सीख लेता था, उसके बाद जो है कुरान करीम की तालीम देते, तजवीद सिखाते और मखरज के साथ कुरान पढ़ना सिखाते। यानी उनकी निगाह में सबसे पहली शय जो औलवियात में से थी वो ये थी कि अपने बच्चों को वो अकीदे की तालीम देते थे मेरे भाइयों। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भेजे जाने का मकसद यही बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है। इसी तौहीद के प्रचार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। जैसा कि मुस्लिम किताबुल मसाजिद की गालिबन रिवायत है कि अन अबी उमामा क़ाल क़ाल अम्रु बिन अबस अबस कुन्तु अना फिल जाहिलिया अज़ुन्नु अन्ना अन्नास अला ज़लालतिन व अन्नहुम लैसु अला शैइन व हुम यअबुदून अल-अवतान फसमअतु बिरजुलिन बिमक्का युखबिरु अखबारन फक़अदतु अला राहिलती फक़दिमतु अलैहि फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तख़फ़ियन जुराउ अलैहि क़ौमु फ़तलत्तफ़्तु फ़दख़लतु अलैहि बिमक्का फ़क़ुल्तु लहु मा अन्ता क़ाल अना नबिय्युन फ़क़ुल्तु वमा नबिय्युन क़ाल अरसलनी अल्लाह फ़क़ुल्तु लहु वमा बिअय्यि शैइन अरसलकल्लाह क़ाल अरसलनी बिसिलतिल अरहामी व कसरिल औसानी व अन युवह्हिदल्लाह व ला युश्रक बिही शैआ फ़क़ुल्तु वमन मअका अला हाज़ा क़ाल हुर्रुन व अब्दुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु मुस्लिम फी किताबिल मसाजिद। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली बयान फरमाते हैं कि हमसे अम्र इब्ने अबसा ने बयान फरमाया कि मेरा यह तसव्वुर और गुमान था जाहिलियत के अंदर कि लोग गुमराही पे हैं, लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। मैंने एक आदमी के बारे में मक्का के अंदर सुना कि वो कुछ ऐसी बातें बयान कर रहा है जो सुनने के लायक है। कहते हैं मैं सवारी तैयार किया और मैं मक्का के अंदर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो छुप करके दावत का काम कर रहे थे। कहते हैं मैं बड़ी नरमी और रफ़ार, बड़ी नरमी और शफ़क़त के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुआ, नबी के पास पहुंच गया और मैंने नबी से पूछा आप कौन हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी हूं। पूछा नबी क्या होता है? कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहा किस वजह से भेजा है? अल्लाह के रसूल कहते हैं सिला रहमी के लिए भेजा है और बुतों को तोड़ने के लिए भेजा है और इसलिए भेजा है कि अल्लाह की तौहीद का प्रचार करूं और शिर्क से लोगों को दूर रखूं। इसी तौहीद के प्रचार के लिए और इसी तरह से शिर्क से लोगों को दूर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सर पे नबूवत और रिसालत का ताज रखा, नबी और रसूल बना करके मेरे भाई को भेज दिया। इस तौहीद की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है और इसी तरह से हदीस के अंदर भी बेशुमार इसके फजाइल वारिद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि जिन्होंने अपने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है यही लोग दुनिया के अंदर अमन अमान में रहेंगे और यही लोग हिदायत पे रहेंगे। कुरान करीम की आयत करीमा बता रही है कि तौहीद ये अमन का तकाजा, तौहीद ये अमन का मुतकाजी है। जो तौहीद वाला होगा वो दहशत गर्द नहीं हो सकता। जो अल्लाह की तौहीद पर कारबंद होगा वो फितना फसाद बर्पा करने वाला नहीं होगा। अगर वो फितना फसाद फैला रहा है तो कहीं ना कहीं उसके तौहीद के अंदर कमी है, उसकी तौहीद हकीकी नहीं है। हकीकी अल्लाह के मुअत्तिद बंदे वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो दहशत गर्दी की तरफ नहीं जाते हैं, फितना की तरफ नहीं जाते हैं, कत्लो गारत गरी की तरफ नहीं जाते हैं। तौहीद हमें ये चीज, तौहीद ऐसी शय है जो हमें बतलाती है कि तौहीद अगर जिंदगी के अंदर है तो वहीं पे अमन सलामती होगा और अगर तौहीद नहीं है तो फितना फसाद होगा। और आप तारीख का मुताला कर लीजिए, जितने भी फितनों फसाद इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं उन्हीं लोगों से हो रहे हैं जो गैर मनहजी और तौहीद से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये अलग बात है, वो अपनी जुबानों से तौहीद की इकरार करते रहते हैं। मेरे भाइयों, हदीस लंबी है, आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।
वक्त ज्यादा इजाजत नहीं देता है। तौहीद की कितनी फजीलत है। एक आदमी तौहीद पर कायम व दायम है, लेकिन अमल के अंदर कोताह हो जाता है, टाइम पे कभी नमाज नहीं पढ़ पाया, नेकी नहीं कर पाया, लेकिन एक अच्छाई उसके अंदर है कि वो तौहीद पर कारबंद है, अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक नहीं करता है। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी है। तिरमिजी की ये रिवायत सुने कि अन अबी अब्दुर्रहमान मुआफिरी सुब्बल हुबली क़ाल समेत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह सयुक़ल्लिसु रजुलन यौमल क़ियामति अला रुऊसिल ख़लाइक़ यौमल क़ियामा फयुनशरु अलैहि 99 सिजिल्ला कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसरी फयक़ूल अतुनकिरु मिन हाज़ा शैअ फयअतुनकिरु मिन हाज़ा शैअ अक़तअह अज़लमक कतबतिल हाफ़िज़ून फयक़ूल ला या रब्बी फयक़ूल अफ़लका उदून फयक़ूल ला या रब्बी फयक़ूल इन्न लका इंदना हसना वइन्नका ला तुज़लम अलैना वइन्नका ला ज़ुल्म अलैका अल-यौम फतुख़रजु बिताक़तुन फ़ीहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा यक़ूल उख़्बिर वज़नक फयक़ूल या रब्बी मा हाज़िहिल बताक़ा मा हाज़िहि सिजिल्लात फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अल-यौम ला ज़ुल्म अलैका अल-यौम इन्नका ला तुज़लम फतूद उस्सिजिल्लातु फी किफ़तिन वल बिताक़तु फी किफ़तिन फताशद उस्सिजिल्लात व फ़क़ुलतिल बिताक़ा सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यफ़कुल मा इस्मिल्लाहि शै औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहु तिरमिज़ी। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अल-मुआफ़िरी बयान फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस को बयान फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कल कयामत के दिन तमाम लोगों के सामने अल्लाह एक आदमी को नजात बख्शेगा, एक आदमी को अल्लाह जहन्नम से छुटकारा अता करेगा। तमाम लोगों के सामने आवाज दी जाएगी, उसको बुलाया जाएगा, तमाम लोगों के सामने अल्लाह उसको नजात देगा। और नजात कैसे देगा और उसके गुनाह किस कदर होंगे, उसके सामने 99 रजिस्टर खोल दिए जाएंगे, 99 रजिस्टर खोल दिए जाएंगे। एक रजिस्टर की लंबाई ताहद्दे निगाह, जहां तक वो निगाह लंबाई में दौड़ाएगा और जहां तक निगाह चौड़ाई में दौड़ाएगा उतना बड़ा अपना एक रजिस्टर पाएगा। और ऐसे 99 रजिस्टर होंगे और सारे रजिस्टर गुनाहों से काले और सियाह होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या तू किसी गुनाह का इनकार करता है? क्या तेरे ऊपर जो फरिश्ते बैठे हुए हैं नेकी और बदी लिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे ऊपर इन्होंने जुल्म करके जो गुनाह तुमने नहीं किया है वो भी ये लिख दिए हो? वो आदमी एतराफ करेगा अल्लाह जितने गुनाह मैंने किए हैं सब इसके अंदर लिखे हुए हैं, न तूने जुल्म किया है न कांधों पे बैठे फरिश्तों ने जुल्म किया है, सारी चीजें हकीकत पे अल्लाह मबनी है। मैं किसी का इनकार नहीं करता और ना ही इस बात का एतराफ करता कि फरिश्तों ने मुझ पर जुल्म किया है, न फरिश्तों ने जुल्म किया है, न तुमने जुल्म किया है। जो मैंने किया है सब कुछ इसके अंदर मुंदरिज और मरकूब पा रहा हूं। अल्लाह कहेगा तेरे पास कोई नेकी है? अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। इतना गुनाह के बावजूद भी रब तबारक व तआला अपने बंदे को तौहीद की बरकत की वजह से तमाम लोगों के सामने नजात देगा। 99 गुनाहों के रजिस्टर होंगे। आज अगर हम एक गलती कर लेते हैं तो माँ बाप हमें घर से बाहर कर देते हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदा नाफरमानी करता है, अल्लाह से मुकाबला करता है, लेकिन रब कितना करीम है, वो गुनाहों से 99 रजिस्टर भरे हुए हैं। अल्लाह बंदे से जाकर के पूछ रहा है क्या तुम किसी चीज का इनकार करते हो? क्या ऐसा है कि फरिश्तों ने तुम पे जुल्म किया है? वो कहेगा मुझ पे फरिश्तों ने नहीं जुल्म किया है, अल्लाह में किसी चीज का इनकार नहीं करता। अल्लाह कहेगा कोई उज़्र है? अल्लाह कहेगा कोई उज़्र है? वो बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह कहेगा कितना कदरदान है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्यों नहीं, तेरी एक नेकी मेरे पास है और वो नेकी ये है कि तू तौहीद का इकरारी था,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो पढ़ करके उसके तकाज़ों पे अमल करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा वो नेकी महफूज है मेरे पास। एक बताखा निकाला जाएगा, कार्ड निकाला जाएगा, उस कार्ड के अंदर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा लिखा होगा, जिसे हम और आप पहला कलमा कहते हैं, वो कलमा लिखा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से कहेगा इन्नका ला तुज़लम, आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, आज इंसाफ का पैमाना है, आज इंसाफ किया जाएगा। बताके को निकाला जाएगा, उसके सामने जब बताका रखा जाएगा, वो आदमी कहेगा ना, कहां 99 रजिस्टर है और ताहत निगाह उसकी लंबाई चौड़ाई है, कहां 99 रजिस्टर है और कहां एक छोटा सा कार्ड और बताका है। अल्लाह इसकी क्या वजह 99 रजिस्टर के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हैं, अल्लाह कहेगा आज तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, 99 रजिस्टर को तराजू के एक पलड़े पे रख दिया जाएगा और वो कार्ड और बताका जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, वो तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल की रिवायत है 99 रजिस्टरों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और जिस बताके में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा उसका पलड़ा नीचे झुक जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के नाम के सामने कोई नाम वजन नहीं हो सकता है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को वसीयत किया था तो कहा था वो चीजों का हुक्म देता हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी है कि सातों जमीन और आसमान को अल्लाह तराजू के एक पलड़े में रख दे और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलड़े में रख दे। ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे भारी नहीं, सातों जमीन और आसमान को अगर एक साथ जोड़ करके कंगन बना लिया जाए, गिरह बना लिया जाए और उस कंगन के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह सातों जमीन और आसमान के बने कंगन को चकनाचूर कर देगा, पाश पाश कर देगा, जर्रा जर्रा में करके उसे बिखेर देगा। ये अहमियत और फजीलत है तौहीद की, ये फजीलत है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम इसे हल्का समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तौहीद को बयान करते हुए कहा, जैसा कि तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, हम कहते हैं तुम तो खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, एक दिन में अल्लाह के रसूल के पीछे सवार था। अल्लाह के रसूल ने कहा या गुलाम, ऐ लड़के, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे एक चंद कलिमात सिखाता हूं जिसको तू कहता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात क्या सिखाया? कहा इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क, तू अल्लाह के वाजिबात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह को अगर तू अल्लाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह को अपने सामने अपने पास सामने पाएगा नुसरत व ताईद की शक्ल में। अल्लाह के रसूल कहते हैं व इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, मांग तो अल्लाह से मांग, किसी पीर फकीर से ना मांग। अगर तुझे मदद तलब करनी है अल्लाह से मदद तलब कर, सवाल करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर। आपको वो हदीस मालूम होगी मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रात के तिहाई हिस्से में समाई दुनिया पे ये आसमान जो हम देखते हैं, इस आसमान से अल्लाह आता है और कहता है कोई मांगने वाला, हमें मांगने की तौफीक नहीं है। जिस रब ने सब कुछ हमें दिया, हमारी दुआओं की उसे जरूरत नहीं है, वो अल्लाह आसमान समाई दुनिया पे आकर के अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जिसकी झोलियों में मैं भर दूं, कोई सवाल करने वाला जिसकी सवाल को मैं पूरा कर दूं, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसको माफ कर दूं। कितना करीब है मेरे रब कि अल्लाह खुद आसमान दुनिया पे आकर के हम खुद ऐलान कर रहा है कोई मांगने वाला, कोई सवाल करने वाला। मेरे भाइयों, हमें इसके बावजूद भी गैरत नहीं आती है। रब को हमारी नमाज, हमारी इबादतें, हमारी नेकियों, हमारे जिक्र और अस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो समाई दुनिया पे आकर के अल्लाह कह रहा है कोई मांगने वाला। अल्लाह कहता है जब मेरा कोई बंदा एक कदम नेकी की तरफ आता है, अल्लाह कहता है मैं 2 कदम चल के मैं 2 कदम आता हूं। अल्लाह कहता है अगर कोई चल के मेरे पास आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं उसके पास दौड़ करके आता हूं। ये अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह किस कदर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उसके बावजूद अल्लाह
ने अगर हमसे नमाज का मुतालबा कर लिया है तो हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं, हम रोजे नहीं रखते हैं, हमारी जुबानें गंदी है, हमारे दिलो दिमाग गलाजत के शिकार है। मेरे भाइयों याद रखो, अगर इस दुनिया के अंदर जो चंद साल तुम्हारी जिंदगी है इसमें अगर हम अपनी इबादत के जरिया, अपनी तौहीद के जरिया अल्लाह को अगर हम खुश नहीं कर सकते तो याद रखो कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। और अगर आपकी तौहीद में खलल होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज़ाब नार के अंदर दाखिल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम तौहीद के शम्मा को अपने दिलों के अंदर रोशन रखें। ये तौहीद मेरे भाइयों, लोग कहते हैं हम तो अहले हदीस हैं, तौहीद बयान करने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं, जरूरत है, तभी तो अल्लाह ने सारे नबियों को तौहीद का हुक्म दिया। जरूरत तो है, तभी तो 13 साल मक्का के अंदर तौहीद का प्रचार करते रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, बड़ी प्यारी रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, सही रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल ईमान लयखलकु फी जौफि अहदिकुम कमा यखलकु सौबा, कि तुम्हारा जो दिल है, ये दिल तुम्हारा ईमान जो दिल के अंदर है, ये ईमान ऐसे ही गंदा जो है, ईमान ऐसे ही मैला होता है जैसे तुम्हारा कपड़ा मैला हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ईमान पे ऐसे मैल जम जाती है जैसे कपड़े पे मैल जम जाती है। जब आप तौहीद की बात नहीं सुनेंगे, तौहीद की बात नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके दिल पे जंग लगेगा, आपके दिल पे धूल मिट्टी और गर्दो गुबार डटेंगे और एक वक्त आएगा कि शहवात में मुब्तला होकर के मासियत के इर्तिकाब की वजह से आपके दिल पे, आपके ईमान पे मैल और कुचैल जम जाया करेगा। आपका ईमान जो है ताजा नहीं बचेगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान पे ऐसे ही धब्बा आता है, ऐसे ही ईमान पुराना होता है जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। और एक और रिवायत है, सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल से पूछ लिया, अल्लाह के रसूल, जब ये अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान किया, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को ताजा कर लो, अपने ईमान को नया बना लो। सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहते कैफ़ नुजद्दिदू ईमानना, अल्लाह के रसूल अपने ईमान को ताजा कैसे करे? अल्लाह के रसूल ने तौहीद पे इशारा किया, कहा अक्सिरू मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी जुबानों से करो। अल्लाह तुम्हारे ऊपर जो ईमान पर मैल जम चुकी है, कुचैल जम चुकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से अल्लाह उस गर्दो गुबार को जो माशियत का शिकार है हमारा दिल, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिया हमारे ईमान को ताजा कर देगा। जैसे हमारे कपड़े पे मैल जम जाती है, कुचैल जम जाती है तो धोने की जरूरत पड़ती है, ऐसे दिलों के धोने का तरीका क्या है कि गाहे बगाहे तौहीद पर बात कर ली जाए, जिक्र अस्कार पर बात कर ली जाए, दीन की बातें कर ली जाए ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए। हमारे ईमान पे भी ऐसे काई जम जाती है जैसे मुसलसल बारिश की वजह से जमीन पे काई जम जाती है, मैल कुचैल जम जाती है, ऐसे हमारे ईमान पे भी असर होता है, हमारा ईमान भी पुराना होता है। इस ईमान को नया करने का यही तरीका है कि मजालिस का एहतमाम किया जाए, दुरुस का एहतमाम किया जाए, जिक्र इलाही से अपनी जुबान को तर रखा जाए, जहां भी मौका मिले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, इस तरह के जुमले अपनी जुबानों से अदा करते रहें, आपका ईमान ताजा होता रहेगा। दर्सो दुरूद सुनते रहें, ईमान ताजा होता रहेगा। यही अल्लाह चाहता है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा था और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को तौहीद पे कायम रखे, हमारे मर्दों और औरतों को तौहीद पे कायम रखे। अल्लाह हमारी उम्मत को तौहीद वाला बना दे। तमाम मुसलमानों के दिलों में तौहीद की शम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन रोशन कर दे, उनके दिलों में तौहीद के पौधे को अल्लाह रब्बुल आलमीन हरा भरा रखे। अल्लाह शिर्क की गंदगी से, बिदअत की गलाजत से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताबेदार बनाए। जब तक अल्लाह जिंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो, हमारा दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ हो। वअक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।